Good morning, students. Chapter 14 and page number 160. So today we are going to start new topic, Home Rule League. In 1916, an Irish lady, Mrs. Annie Besant, established the Home Rule League in Madras and Bal Gangadhar Tilak established it in Maharashtra. तो जो होम रूल लीग था वो मेड्रास में मिसिस एनी बेसेंट ने एस्टैब्लिश किया और इन महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक एस्टैब्लिश्ड. In which year? 1916. And what was the purpose of this league? Attain self-government. Attain आपको बताया गया है achieve. What they want to achieve through this league? Self-government. Self-government, we are talking about Swaraj. The British government tried to crush the movement, but the agitation continued. British government ने इसे काफ़ी ख़त्म और तोड़ने की कोशिश की, बट द एजिटेशन, जो लोगों में एजिटेशन था वो कंटिन्यू रहा. लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916. इन 1916 द मॉडरेट एंड रेडिकल्स reunited to strengthen the national movement after 9 years and signed a joint pact at Lucknow with the Muslim League. As you read in the previous topic, moderate and radicals were split in Surat session. Okay, but they reunited after 9 years. In which year? In 1916. So what they did in this was the joint pact at Lucknow with the Muslim League. It happened at Lucknow, so that's why we are using the word Lucknow Pact of 1916 with the Muslim League. यानी कि मुस्लिम लीग तब बन चुका था. तो इफ़ यू वांट सेल्फ रूल इन योर कंट्री तो आप इन दोनों को इकट्ठा होना मस्त था. ठीक है. मॉडरेट एंड रेडिकल्स, नाउ यू कैन यूज द वर्ड कांग्रेस एट दैट टाइम पीरियड एंड मुस्लिम लीग. दे जॉइंटली डिमांडेड सेल्फ रूल फॉर इंडिया. So that was, everyone wants that time Swaraj. So next topic is arrival of Mahatma Gandhi on the Indian political scene. So now the history starts with Gandhi in for the independence struggle. After the First World War during 1914 to 18, अब आपको पता होना चाहिए कि during this time period was First World War, and Mohandas Karamchand Gandhi took over the leadership in the Congress. He introduced the technique of non-violent agitation. So what was their ideology? Their ideology was based on non-violent, यानी कि बिल्कुल भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, which was called सत्याग्रह, जिसे कि नाम क्या दिया गया? सत्याग्रह, डिमांड फॉर ट्रूथ. It was a non-violent struggle against the British oppression. He propagated tolerance, जो उनके आइडियोलॉजी में वर्ड्स क्या कहते हैं? टॉलरेंस, ब्रदरहुड, नॉन वायलेंस एंड सिंपल लिविंग. किसकी आइडियोलॉजी थी ये कि ऐसा होना चाहिए? मोहनदास करमचंद गांधी. गांधी जी realized that social reforms were necessary for a truly national struggle. मतलब जो उस टाइम पे इंडिया में बहुत सी सोशल एविल्स थी. सोशल एविल्स मीन्स लाइक अ चाइल्ड मैरिज एंड सती, एंड द मेन सोशल एविल वॉज दैट टाइम casteism. Okay, so he established Sabarmati Ashram in Gujarat, where people of all castes and religion were welcomed. His first movement was in support of peasants. तो आप यहाँ देखें कि why he established Sabarmati Ashram, because then all caste and religion can go there and to discuss their problems with Gandhi. Okay, तो सभी के लिए वो ओपन था. एंड गांधीज फर्स्ट मूवमेंट वॉज इन फेवर ऑफ पेजेंट्स. पेजेंट्स होता है फार्मर्स, किसान लोग. इट हैपन और इट बिगेन इन चंपारण इन बिहार, and that was started in 1917 regarding indigo. वो चाहते थे कि जो वो किसान लोग अपनी खेती में इंडिगो होता है नील, जो लगाते हैं
उसके प्राइसेस को वो इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है, तो ताकि जो किसान है उन्हें उसका बेनिफिट हो। इतना क्लियर हो गया। बाय 1919 गांधी जी हैड बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया। तो 1919 तक गांधी जी को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। ही लॉन्च्ड मैनी पावरफुल मास मूवमेंट्स, यानी कि और भी उन्होंने कई पावरफुल मूवमेंट्स स्टार्ट किए। द नेक्स्ट वन इज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। अब होता क्या था कि जब भी कुछ रिफॉर्म्स होता था या कुछ एजिटेशन होता था, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक एक्ट लॉन्च करती थी उस टाइम पे। जैसे द ब्रिटिश पेड नो हीट, हीट होता है आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, टू द एजिटेशन फॉर सेल्फ रूल गोइंग ऑन ऑल ओवर द कंट्री। तो गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ एजिटेशंस। दे इंट्रोड्यूस अनदर सेट ऑफ रिफॉर्म्स टू अपीज। अपीज क्या होता है? शांत करना, ठीक है, काम। बट द रिफॉर्म्स वर इनसिग्निफिकेंट, मतलब जो ये रिफॉर्म था कोई ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर वॉज इंक्रीज इन लेजिस्लेचर असेंबली। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि मेंबर्स तो इंक्रीज किए लेजिस्लेचर असेंबली में भी और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बट देयर वॉज नो चेंज इन द लोकेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर अभी भी ब्रिटिश के ही पास थी। द सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट डायरेक्टरी वॉज इंट्रोड्यूस। All important subjects like finance and police were under the control of governor, and the Indian ministers were given the charge of education and health। यानी कि जो मेन पावर्स थी, फाइनेंस एंड अदर सपोर्ट, वो उन्होंने अपने पास रखी, और इंडियंस को उन्होंने जो मिनिस्टर, उसमें उन्होंने सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ का चार्ज दिया। बट द रियल पावर स्टिल रिमेन विद ब्रिटिश ऑफिशियल, and that's why Indians were very angry and disappointed by the reforms. So Indians were not very much happy with these reforms. So, and the next one is Rowlatt Act of 1919. There was growing unrest among Indians. Protest increased. The British government passed the Rowlatt Act to consolidate their control. It empowered the government to arrest anyone without a warrant and imprison people without trial. This caused massive demonstration and हड़ताल all across the country. So ये जो रॉलेट एक्ट था, आप इसे समझे कि थ्रू दिस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन इम्प्रिजन एनीबडी, किसी को भी वो जेल में डाल सकती है। ड्यू टू दिस एक्ट पीपल कांट, यहाँ पे आप समझे इस बात को कि इस रॉलेट एक्ट को ब्लैक लॉ हम कहा करते थे। इफ द पर्सन विल अरेस्ट, दे आर नॉट अलाउड टू डू एनी अपील, दलील एंड वकील, मीन्स देर आर नो राइट्स फॉर दीज थिंग्स। सो दैट्स वाई दिस एक्ट was not good for the Indians, and that's why they started agitation. So that's all for today. Thank you.